اور ابھی آپ کو ہم خبر سا کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی پہنچ چکے ہیں اور ایک عوام کی بہت بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر پہنچے. مناظر بھی آپ کو ملک کی اسکرین پر اس وقت دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. جیسے ہی چیئرمین صاحب پہنچیں گے ہم ان کا خطاب سننے کے لیے بے چین ہیں اور پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہ کارکن آپ کا انتظار کر رہے تھے بڑی بے چینی سے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب آپ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اس سے پہلے اس کے بعد جب اس ملک کو ضرورت پڑی آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور اس ملک کا پرچم بلند کیا, اس ملک کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑا. مجھے نہیں پتا کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں. ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہم شہید بھٹو کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم شہید بی بی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شہید بی بی کا, شہید بھٹو کا پرچم, اس کا علم اسی طرح اٹھا کے رکھا ہے, نہ کارکنوں کو مایوس کیا ہے نہ ملک کو مایوس کیا ہے. میں چیئرمین صاحب کی تقریر سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا احترام مند کھڑے رہیے. پہلے قومی ترانہ ہوگا اور پھر چیئرمین صاحب کا خطاب ہوگا. اب میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے دعوت خطاب دینا چاہوں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا تعداد میں, اتنا گرمی میں یہاں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے. میں نے وزیر اعظم صاحب کے اور صدر پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے, دنیا بھر کا کیا 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں. جہاں پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے, دنیا بھر کا کیا 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں, جہاں ہم نے پاکستان کا پیغام, امن کا پیغام بھر میں, نیو یارک میں, اقوام متحدہ میں, امریکہ کے دارالحکومت میں, واشنگٹن ڈی سی میں, لندن کے, ہاں بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے, مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے, ہمارا افواج نے, ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا, اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے, اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت نہ. تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا, زیادہ وسائل ہوں گے, لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے. اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی, اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. تو
हमने बयानिया के लिहाज से भी पूरी बैन अल-अक़वामी मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत का बयानिया हार गया है। आपको मालूम है कि कश्मीर का मसला पार्टीशन से लेके आज तक हमारे लिए एक बहुत अहम मसला रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी कश्मीर की मसला पे ये पार्टी की बुनियाद रखी गई और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या सदर ज़रदारी, हमने हर दौर में कश्मीर के अवाम का आवाज़ उठाए हैं, उठाते रहेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। भारत का ये इमरान खान के दौर में भारत ने 2019 में कश्मीर पे एक हमला किया और उस वक्त का वजीर आजम ने पाकिस्तान के असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं क्या करूं, मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब आपका सदर ज़रदारी था, आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ था, तो जब इस दफा कश्मीर पे हमला हुआ, दहशतगर्दी के बहाने पे कश्मीर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जब वो पहली रात पे भारत ने अपने जहाज उड़ाए थे और पाकिस्तान के कश्मीर के बेगुनाह शहरियों को निशाना बना के शहीद किए थे, तो पाकिस्तान का फौज ने भारत के 6 जहाज गिराए थे। पहले वो नहीं मानते थे, वो कहते थे कि कोई जहाज ही नहीं गिरा। हम कहते थे कि पूरी दुनिया मान रहा है कि आपके जहाज गिर चुके हैं, मगर वो इनकार कर रहे थे। वो 1 महीने बाद मान चुके हैं कि हाँ जी आपने हमारे जहाज गिराए हैं। भारत का यह कोशिश था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे, और जैसे खान साहब के दौर में पाकिस्तान खामोश रहा वैसे आज भी हम खामोश रहेंगे। मगर ये इनकी भूल था, पूरा पाकिस्तान एक हो के हर बहास पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने जगह जगह कश्मीर का आवाज उठाया और इस जंग से पहले भारत का मौकिफ ये था कि कश्मीर तो भारत का अंदरूनी मामला है। अब उनको मानना पड़ रहा है कि कश्मीर, ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, कश्मीर की अवाम की, नौजवानों की फतह है कि आज कश्मीर की बात श्रीनगर और मुजफ्फरबाद, इस्लामाबाद और दिल्ली के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पे हो रहा है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है पाकिस्तान और भारत का बातचीत करवाने के लिए। ये आपकी तारीखी कामयाबी है। इसके साथ साथ मोदी ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है।
پاکستان کی تاریخ میں ہمارا سندھ پہ ایسا حملہ نہیں ہوا جیسے مودی آج کرنے جا رہا ہے. ان کا یہ دھمکی کہ وہ پاکستان کا پانی سندھ پہ حملہ کر کے آپ کا پانی روکیں گے. ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ جب سندھ کی بات آتی ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کے کردار ادا کرتی ہے. یہ آپ نے شہید محترمہ مے نظیر بھٹو کے دور میں آپ سب نے ہمارا سندھ کو بچایا تھا اور تاریخی تحریک چلائے تھے. حال ہی میں جب وفاقی حکومت کوئی غلط پالیسیز اپنا رہے تھے تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے، آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کی. ہم نے مثبت سیاست کر کے، آئینی فورمز کو استعمال کر کے، سی سی آئی کے تھرو اپنا سندھ کو تحفظ دلوایا تھا. یہ آپ کی کامیابی. اور اب جب بھارت نے حملہ کیا تو میں نے وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ میں ان کو بے نقاب کروں گا، سندھ کا کیس لڑوں گا، اور وہ ابھی کر کے آیا ہوں. بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے، مگر پاکستان کے یہ مقدمہ جو تگڑا مقدمہ ہے، ہم نے اقوام متحدہ میں آپ کا سندھ کا دفاع کیا. ہم نے امریکہ میں ان کے دارالحکومت میں آپ کا سندھ کا دفاع کیا. ہم نے برطانیہ میں، یورپ میں آپ کا سندھ میں دفاع کیا کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے کہ اگر بھارت ہمارے سندھ کی طرف مالی آنکھ بھی دکھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جنگ لڑیں گے اور ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا. سنتاس معاہدہ کے تحت 6 میں سے جو 3 دریا ہے وہ پاکستان کے حوالے اور باقی 3 بھارت کے حوالے. تو بھارت کے پاس 2 آپشنز ہے، یا مانے عالمی قانون مانے، اپنا سنتاس معاہدہ مانے اور عمل درآمد کرے. نہیں مانتے تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گی اور 6 کے 6 دریے آپ کے ہوں گے. ہم نے ہر محاذ پہ اپنا سندھ جو پورا ملک کو پانی پہنچاتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو کشمیر سے لے کے یہاں کراچی تک پاکستان کا جو پانی ہے وہ اسی سندھ سے آتا ہے. یہ پاکستان کے بننے سے پہلے سندھ چلتا آ رہا ہے. ہم تو اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن کے ورثہ ہے اور ہم اپنا دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں. جہاں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آئے ہیں، میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ان سیاسی یتیموں سے جو پاکستان کے اندر نفرت، تقسیم اور ناکھپے کی سیاست کرتے ہیں کہ وہ صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا کے عادی ہے. ان کا پیپلز پارٹی کو گالی دینا ان کے لیے آسان ہے. تو آج جب مودی نے، جب بھارت نے ہمارا دریا پہ حملہ کیا ہے تو یہ سیاسی یتیم کہاں گم ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کہاں غائب ہے؟ ان کے دھرنا کا کیا ہوا؟ ان کا احتجاج کا کیا ہوا؟ ان کا شور کا کیا ہوا؟ سندھو صرف بہانہ تھا، نشانہ تو آپ کا پیپلز پارٹی تھی. ان کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت کی فنڈنگ رہا ہے.
भारत पैसा देता है ताकि इस किस्म की तंजीमें बलूचिस्तान में ना खप्पे का नारा उठाए, सिंध में ना खप्पे का नारा उठाए, मगर उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमारे JLM और JALIA मौजूद है। हमारा नारा आपका नारा है कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। और इंशाअल्लाह ताला इनका इंशाअल्लाह ताला अब चौथी बार जब 4 साल बाद इलेक्शन होंगे तो इन्हीं सियासी टीमों को आप एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। वो जो जब सिंधु पे तारीखी हमला हुआ है भारत की तरफ से हुआ है और वो आज तक खामोश है, तो सिंध का अवाम, पाकिस्तान के अवाम इन सियासी टीमों को कभी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे बड़ा कुर्बानियां दिए हैं और आज भी पाकिस्तान का फौज दहशतगर्दी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। दुनिया को ये मालूम है, भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका से होकर आए हैं, यूरोप से होकर आए हैं, ब्रिटानिया से होकर आए हैं, सब के सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, ये दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। भारत ने अरबों डॉलर्स ब्रिटेन में, अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्ट किया है, मगर फिर भी भारत का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब इस मुल्क का वजीर खारजा था तो FATF से हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में तब्दील कर दिया। इसका मतलब कि आलमी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान वो इक़दामात उठा रही है जिससे दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो कमेटी थी, हम भी इस दौरे पे चल रहे थे और भारत ने भी अपना कोई कमेटी भेजा था। हम एक वक्त में अमेरिका में होते थे, एक वक्त में ब्रिटेन में होते थे, एक वक्त में यूरोप में होता था। हमारा पैगाम आपको मालूम, उनका पैगाम मैंने आपको बता दिया। चीज़ है दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का कमिटीज़ है, उन्होंने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि ये आप कमिटीज पाकिस्तान का संभाले। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस भी तस्लीम कर रही है कि अगर आलमी सतह पे दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान इनका मुकाबला करे। मतलब ये पाकिस्तान की बयानिया की जीत है, ये पाकिस्तान की सफारतकारी की जीत है, ये मोदी की हार है, ये भारत की नाकामी है। वैसे ही भारत और अमेरिका के दरमियान जो दोस्ती है वो तो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, मगर इससे बावजूद पाकिस्तान का ये कमेटी जिसे एक जमात से नहीं तमाम और काफी ज्यादा जमातों की नुमाइंदगी थी, हम अमेरिका से निकले तो वहां के अफवाज का सरबराह ने, और उसी वक्त भारत का कमेटी भी वहीं थी, जहां हम जाते थे वो पीछे वहीं पहुंच जाते थे। हम कुछ बात करते थे, वो उल्टी अपनी झूठ सुनाते थे। मगर कामयाबी आप इस नजर से देखें कि जैसे हम अमेरिका से निकले तो वहां का जो अफवाज का जनरल है वो अपना ही पार्लियामान से खिताब करते हुए कहता है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द वॉर ऑन टेरर। मतलब अमेरिका भी, भारत का दोस्त भी ये तस्लीम कर रही है कि नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाती, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है।
ये आपकी कामयाबी है, भारत का नाकामी है। साथ साथ उनका स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से बातचीत करवाने के लिए तैयार है, तो वो भी जब ये बात मानते हैं तो ये भारत का नाकामी आपका कामयाबी है। उसकी फौरी बाद तारीख में पहली बार पाकिस्तान का फौज का सरबराह हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुलाकात लंच पे होता है। फौरी बाद लंच पे होता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। मैं आपसे पूछता हूं, नहीं भारत से पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान टेररिस्तान है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, तो हमारा अफवाज का सरबराह वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में क्या कर रहा था? ये भारत की नाकामी है, पाकिस्तान का कामयाबी है। और ना सिर्फ ये, हमारा उसी वक्त फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत थी। वो तो खुद परेशान थे कि हम तो भारत को इतना पैसा बेचते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो तो अपना 6 जहाज भी नहीं संभाल सके। तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ कामयाबी, ये अमेरिका के लिहाज से तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान की, आपकी, इस मुल्क की, हमारा अफवाज की। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमने अपना जिद्दोजहद जारी रखना है। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान से मगर इस पूरा खित्ते से दहशतगर्दी को ख़त्म करें। हम समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो तो हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करते तो हमारे लिए भी यहाँ दहशतगर्दी का मसला रहेगा और इनके लिए भी वहाँ दहशतगर्दी का मसला रहेगा। हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, और अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो भी मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा में खुदा ना खास्ता एटॉमिक जंग हो सकता है, तो वो किसी का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता, वो बैनुल अक़वामी सतह का मसला रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान से लेके दुनिया के कोने कोने तक, आखिरी दम तक इंसाफ पहुंचाने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है, मगर हम अपना सिंधु का आवाज बनेंगे, इसका दिफा करेंगे और अपने अवाम तक पानी पहुंचाएंगे। जो लोग सिंधु पे सियासत करते रहते हैं उनको अपना खामोशी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम इस सूबे के, इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम सिंधु का जो जिद्दोजहद है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में और बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ते रहेंगे। भारत को मजबूर करेंगे कि उनको या सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, या हमें 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के हवाले, जंग के सूरत में पाकिस्तान के हवाले करने पड़ेंगे।
मैं वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर ख़ारजा का, पूरी दुनिया में जो हमारे सफ़ीर मौजूद है, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, यूके में, ईयू में, उन सब का जो हमारा टीम में जो वज़ीर आज़म ने जो टीम बनाया जिसका क़यादत में कर रहा था, आपकी शरी रहमान साहिबा उसमें शामिल थी, हिना रबानी खर साहिबा उसमें मौजूद थी, साथ साथ हमारा ये सेनेटर फैसल सब्तवारी जो कि कराची से है, MQM से है, वो भी हमारे साथ था, मुसद्दक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, बुशरा भट्ट साहिबा, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये तहमीना जंजुआ साहिबा, उन सब का शुक्रगुजार है जिन्होंने मेरे साथ अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा मुलाकातें की हैं और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज़्यादा ठोस है, ज़्यादा तगड़ा है। वो लोग जो पहले पाकिस्तान पे शक कर रहे थे, अब वो पाकिस्तान के बात मानने पर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हम अपना मंजिल पे नहीं पहुंचते। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बयानिए की जंग जीत ली है, हमने मुस्बत सियासत की और आइनी फोरम को इस्तेमाल किया, हमारी अफवाज फिजाइया ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। ऐसा कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। स्टूडियो से फिलवक्त मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।